कैसे हो दोस्तों? मेरा नाम है आनंद तिवारी और आप सबका स्वागत है एटी क्लासेस में। और आज मैं आप सबको सस्पेंशन से आगे एनसीईआरटी के पूरे सेकेंड चैप्टर तक लेके जाऊंगा। सो लेट्स कंटिन्यू टू आवर पार्ट 4 ऑफ लेक्चर सेकेंड. Now, basically, we will start from a simple activity which is given in our NCERT book. That is, we should divide or distribute the samples to 4 groups of students. Let the groups be A, B, C और D. तो बच्चों हमें इस एक्टिविटी में 4 ग्रुप में कुछ बच्चों को डिवाइड करना है। मान लीजिए कि आपके क्लास में से हो या आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में से। सो ए बी सी डी। अब ए ग्रुप के बच्चों को हमें few crystals of, we should provide them few crystals of copper sulfate CuSO4. Now the B group we should provide one spatula of copper sulfate or CuSO4. Now to third group or the C group we should provide chalk powder or wheat flour. Now to the D group we should provide few drops of milk or ink. Now let's see what we should observe the solutions given to these groups. Now we should we should form a mixture of these substances by adding 50 ml of water. What we will get now, in here we have seen the groups A and B gets the uniform composition or gets the solution. Now group C has got the suspension, what we have going to learn today. Now chalk powder or wheat flour. Now बच्चों chalk powder और wheat flour को अगर हम पानी में 50 ml पानी में मिलाते हैं तो बच्चों वो मिलती ठीक से नहीं है। एलम चॉक से चॉक जो है वो एलम से बनी होती है। एलम क्रिस्टल्स वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, वो या तो सिर्फ रोटेट करते रहेंगे या मीन्स दे रोम अराउंड द वाटर, ओके, और दे सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द वाटर लेवल, राइट। और दी व्हीट फ्लोर, अगर आटे को अगर हम पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो भी डिसॉल्व नहीं होगा। सो ऐसा क्यों, ये तो हमने जाना क्योंकि इनकी ये नेचुरल प्रॉपर्टी है कि ये पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। अब इस सॉल्यूशन को यानी कि इस मिक्सचर को सस्पेंशन हम क्यों बोलते हैं, आइए जानते हैं। Now what is suspension? Now suspension, we have seen that it is a mixture of chalk powder or wheat powder I mean wheat flour, right? Now we will discuss about what is suspension. Now suspension is a non-homogeneous system. So students, I have discussed this topic about homogeneous, non-homogeneous, right, mixtures, pure mixtures, right, pure substances mixture, etc. in the last video. If you have not watched that video, please go there, download it and watch. Otherwise after seeing this video you can go to that video and watch it later on. Now let's continue here. Non-homogeneous systems means the mixture which has non-uniform composition, like those we found in group activity C, group C in activity 2.2. Here the solute particles, the alum or the wheat flour, these particles do not dissolve but remain suspended throughout the
bulk of medium, or the bulk of medium means the water, 50 ml of water, we can say the bulk of medium. See, I told you that these particles, chalk or wheat flour, doesn't dissolve in water. These particles do not dissolve in water, right? I will move little bit here. These particles do not dissolve in water. They remain suspended throughout the water. Now, particles of suspension have visibility, or we can see it through our naked eyes. So we have seen this non-homogeneous systems, means the mixtures which has non-uniform composition, right? These mixtures are called non-homogeneous or heterogeneous mixture. We have also learned about this in the last few videos. Now we have also seen that solute particles of chalk or wheat flour. Now we have also discussed about solute and solvent. Solute is the thing which is present in any mixture in the lesser quantity because it's alphabetical. That's the Rockstar method. To see this Rockstar method, you should see the last video, right? Now, solute particles do not dissolve in this water with chalk. That the solute particles here is wheat and salt or chalk, right? These particles do not dissolve in लिक्विड और वाटर. ये जो पार्टिकल्स है बच्चों, व्हीट फ्लोर और चॉक, चॉक बनी रहती है एलम से, तो मैं इसे एलम से ही बोलूँगा आपको, ठीक है. सो सॉल्यूट पार्टिकल्स. अब सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं? सॉल्यूट पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो एक मिक्सचर में लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, राइट. So solute particles do not dissolve in liquid but they remain suspended. यानी कि वो उसमें होते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर, पर क्या मिक्स नहीं होते. डिसॉल्व, जैसे शुगर डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है, राइट. these mixtures, these substances dissolve in water, but this suspension means these solute particles do not dissolve in water, and the mixture of these non-soluble unsoluble particles is called suspension. Now we have seen that suspension is a non-homogeneous or heterogeneous mixture. We have also seen that solute particles do not dissolve, they remain suspended throughout the mixture. Now we have also seen that this suspension we can see from our naked eyes. So visibility is the third property. And now I will teach you about the fourth property, that when the particles of suspension, when they are just mixed in the mixture, this is a glass. Wait, I will show you how it is. See, this is a glass, right? So this is a glass. If I add the particles of wheat or chalk in it and keep on stirring it with the help of glass rod or a spoon, right? Now particles will move around here and here. The whole glass of water will be full of particles, small tiny particles, right? Now these particles, when particles of suspension scatter a beam of light passing through it and makes its path visible, right? Now if I keep a torch here and this mixture of this chalk powder or wheat, I will see that the particles of this suspension, they will scatter a beam of light, right, and make its path visible. Now if अब मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ. अगर मैंने इस मिक्सचर में पानी में, इस एक ग्लास के पानी में चॉक पाउडर या फिर कौन सी भी आटा मिला दिया,
और इसे स्टीर किया, मीन्स इसे मिलाया और उसके बाद ऐसे ही छोड़ दिया। अब जस्ट उसके ऊपर मिलाने के बाद जस्ट एकदम मतलब ऐसा 1 सेकेंड में उसके ऊपर टॉर्च से लाइट पास आउट की। अब उसमें अब ये प्रॉपर्टी बताती है कि सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल होते हैं ये अपनी राह दिखाते हैं, यानी कि दे स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट passing throughout and makes its path visible. We can see through our naked eyes, right? Now, as if we kept it left undisturbed for some time, the solute particles they comes here. They comes at the bottom, right? And now they can be separated from the mixture, right? बाई दी प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। अब हम इस मिक्सचर को फिल्टरेशन के प्रोसेस से मीन्स अलग अलग कर सकते हैं, बाय फॉरगेटिंग जो बोलते हैं, राइट? अब फिल्टरेशन के प्रोसेस से हम वी कैन गिव विद द हेल्प ऑफ फिल्टरेशन वी कैन डिवाइड द वाटर एंड द chalk पाउडर और wheat और द वाटर इन 2 parts. Now as the suspension breaks, as the particles settle down, the suspension break, and now if the particles move down, and now if we scatter a beam of light here, they does not scatter light anymore, right? So this was all about suspensions. So guys, after a break, let's continue. अब अभी तक हमने सस्पेंशन के बारे में पढ़ा था, and now we are just moving to the third type of mixture, which is also called as colloidal solution, right? अब हमने 3 टाइप की मिक्सचर्स तो पढ़ी थी, right? Which was first one is about solution, second is about suspension, and the third and the last is colloidal solution. Now अब colloidal colloidal solution क्या था? अब colloidal solution जो हमें 2.2 में जो D ग्रुप में हमें क्या मिला था वो था, सो D ग्रुप में हमें क्या डाला था, इंक डाला था, राइट? इंक और मिल्क, टू ऐड इंक और मिल्क इन 50 ml ऑफ वाटर। सो उस सोल्यूशन को, उस जो मिक्सचर को हम कोलोइडल सोल्यूशन बोल सकते हैं या कोलोइड बोल सकते हैं, राइट? नाउ I will tell you things that particles of a colloid are uniformly spread throughout. आप ये लॉजिक मीन्स सोच भी सकते हैं कि जो इंक के पार्टिकल्स है, अगर हम वाटर में इंक मिलाते हैं तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट हो जाते हैं, राइट? वो कम्प्लीटली मिल जाते हैं एक दूसरे से, राइट? नाउ इन they are uniformly spread, यानी कि हम उन्हें होमोजीनियस मिक्सचर भी कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते भाई? जरूर कह सकते हैं। उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म है तो हम उन्हें यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाले होमोजीनियस भी बोल सकते हैं, पर ऐसा नहीं है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स, इनके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ ए सस्पेंशन। अब सस्पेंशन में हमने क्या यूज किया था? चॉक पाउडर, एलम, राइट? और यही इधर हमने यूज किया था, हमने इधर यूज किया है इंक। अब इंक का एक ड्रॉप भी मिलाओगे तो वो स्टेर होके कितना, मतलब थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम डिवाइड होके पूरा स्प्रेड थ्रू आउट हो जाएगा, लेकिन वो इसलिए हेट्रोजीनियस है क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में मिल्क भी आता है। कोलोइडल सोल्यूशन में मिल्क भी आता है, और इस सोल्यूशन में मिल्क से बना है, ये भी मैंने बताया, मिल्क बना है
वाटर, फैट और प्रोटीन्स है, राइट। इट इज ऑल्सो ए मिक्सचर। अब मिल्क जो है भाई, मिल्क को पानी में मिलाएंगे सो भी मिल जाएगा, लेकिन इट कैन बी सेपरेटेड, वो सेपरेट हम लोग कर सकते हैं, इसीलिए इसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा गया है, राइट। उसमें यूनिफॉर्मिटी होती नहीं है, वाटर ज़्यादा परसेंट में होता है, फिर उसमें प्रोटीन्स कम होते हैं, फैट्स तो थोड़े ज़्यादा होते हैं, राइट। सो इसलिए हम इसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, राइट। नाउ नॉन विजिबिलिटी। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये इतने स्मॉल होते हैं। अब इंक को आपने देखा होगा कि इंक, अब एक ड्रॉप इंक अगर हम पानी में मिला देते हैं, अब उसे फिर स्टिर करते हैं ग्लास रॉड से, सो वो कितनी वो पूरा पानी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होकर पूरा इंक का कलर का हो जाएगा, राइट। एक बूंद दो बूंद भी डालोगे तो पूरा इंक का कलर हो जाएगा। अब उसके पार्टिकल्स को आप देख सकते हो? नहीं देख सकते हो भाई। क्यों नहीं देख सकते हो? बिकॉज दे आर सो स्मॉल, ड्यू टू देयर स्मॉलर एंड स्मॉलर साइज। दिस इज ड्यू टू देयर स्मॉलर एंड स्मॉलर साइज that these particles are non-visible. That means we can't see them. Now let's move on to this this what is written, actually it's my mistake, sorry. Now let's continue about these 2 points. I will talk with you later. Now let's move on to a different world of Tyndall effect. Now what is Tyndall effect? Now Tyndall effect is the effect in which scattering a beam of light is called Tyndall effect. अब हमने सस्पेंशन में किया, अब मैं आपको बोल रहा था कि ग्लास के टॉर्च पार्ट आउट करेंगे तो उसकी जो पार्टिकल्स हैं वो बीम ऑफ लाइट स्कैटर करेंगे, राइट। सो स्कैटरिंग, इस प्रोसेस को जो पार्टिकल्स अपना बीम स्कैटर करती हैं, इस प्रोसेस को टिंडॉल इफेक्ट बोलते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इसे टिंडॉल क्यों कहते हैं भाई, और भी बहुत सारे नाम है, इतना हार्ड नाम क्यों? हार्ड नाम मीन्स इजी नाम। तो ये टिंडॉल इफेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस स्कैटरिंग अ बीम ऑफ लाइट का जो इन्वेंशन था, ये साइंटिस्ट टिंडॉल के जरिए हुआ था, इसलिए इनका नाम से वह संबोधित किया जाता है। नाउ स्कैटरिंग, अब कोलोइडल सोल्यूशन में भी है कि स्कैटरिंग अ बीम ऑफ लाइट, अगर हम कोलोइडल सोल्यूशन में भी बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं, मीन्स वो टॉर्च वाला जो था एग्जांपल वो करते हैं, तो भी कोलोइडल सोल्यूशन हमें दिखाएगी, पार्टिकल्स का पाथ दिखाएगी और उसे विजिबल हो। अब कैनोपी डेंस फॉरेस्ट के बारे में बोलता हूँ। अब आपको एक बीम ऑफ लाइट स्कैटरिंग अ बीम ऑफ लाइट यानी कि टिंडॉल इफेक्ट कहाँ दिख सकती है? अब आपको तो ये रूम टेम्परेचर में दिख सकती है, राइट, आपके रूम में दिख सकती है। एक काम करो, जो हम रेनबो के लिए करते हैं ना, अब रेनबो तो इतना बड़ जगह पे होता है, अब रूम में रेनबो करने के लिए हम एक प्रिज्म तैयार करते हैं, राइट, ग्लास प्रिज्म। उसकी जो अपैरेटस है सेम अपैरेटस, क्या करना है आपको, बस पूरा रूम को अंधेरे में कर देना है। उसके बाद सिर्फ ऐसा कोई चीज़ करना है जिससे रूम में सिर्फ एक छोटे से स्मॉल होल से लाइट पास आउट कर रही है, राइट। तो अब हम इस लाइट के दौरान पार्टिकल्स को हिलते हुए देख पाएंगे, इसे टिंडॉल इफेक्ट कहते हैं, राइट। और उनका पाथ भी हम देख पाएंगे, इतनी वो मतलब विजिबल हो जाती है लाइट के वजह से, राइट। अब हम इसे नेचुरली और कब देख सकते हैं? अब देखो भाई, ये मैंने बनाया, थोड़ी डायग्राम थोड़ी गंदी होगी लेकिन फिर भी एडजस्टेड। इसे हम कैनोपी डेंस फॉरेस्ट, पता है आपको, बाहर विदेशों में होता है, इंडिया में भी होता है, आप देख सकते हैं। अब बहुत सारी जंगलों में, जो हम बोलते हैं इन अ जंगल lots of trees, the forests are basically covered by lots of trees. अब lots of trees में जब सूर्योदय होता है, यानी कि जब
सनराइज होता है तब सूर्य की जो पहली किरणें हैं यानी कि सन रेजेस जो होती हैं वो जब अर्थ पे आती है तब इन छोटे छोटे, आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, मैं आपको एक बार फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ। राइट, ये देखो, अब ये एक पेड़ का ट्रंक है। राइट, ये भी एक पेड़ का ट्रंक है, ये भी एक पेड़ का ट्रंक है। राइट, ये सबको भूल दो, ये पूरा ब्लैक स्क्रीन है। राइट, तो ये था ये। अब ये इधर हमने, अब सूर्योदय हो गया भाई। राइट, सन भी मैंने दिखा दिया है। अब इस सन से जो स्पेसेस में जो लाइट आ रही है ना, ये देखो, इन स्पेसेस से जो लाइट आती है ना, वो मीन्स बहुत मतलब अमेजिंग लगती है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, इतनी सुंदर दिखती है। अब ये तो हो गया भाई, हमने तो उसमें टॉर्च दिखाया था। अब हमें पार्टिकल्स कैसे दिखते हैं, वो भी नेचुरली। सो ये इस वजह से होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स प्रेजेंट, आपको पता है ड्यू ड्रॉप्स के बारे में, मिस्ट के बारे में पता है। मिस्ट कंटेन्स द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट्स एज द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड डिस्पर्स्ड इन एयर। अब एयर के पार्टिकल्स में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सचमुच सॉल्यूबल नहीं है, मतलब एयर में वो मिलती नहीं है, ऐसे हमेशा घूमती रहती है। सो वो पार्ट्स को एयर रेस डालती है, उन पे टॉर्च वाला काम करती है, और वो पार्टिकल्स अपना लाइट अपना पाथ दिखाते हैं, एंड thus we can see Tyndall effect naturally. Now let's continue to this colloidal solutions properties. अब ये तो हमने कर लिया भाई। Scattering a beam of light is called Tyndall effect। ये याद रखिएगा, these solutions scatter beam of light, right? Now stability। अब जो सस्पेंशन की जो थी पार्टिकल्स, वो पानी में ये हो सकती थी, मीन्स डिजॉल्व हो सकती थी। राइट, लेकिन कोलोइडल मतलब एलम पाउडर, हमने ये भी डिस्कस किया था कि सस्पेंशन की जो मिक्सचर होती है वो अनस्टेबल हो जाती है। वाई, अगर सस्पेंशन के मिक्सचर को हमने कंटिन्यूसली स्टेट नहीं किया, तो अगर उसे वेदर वी लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब, द पार्टिकल्स मूव बॉटम towards the bottom and settle down. Right, now because of this particle here, if Tyndall effect occurs, we can't see the beam of light through particles। ये सस्पेंशन का बता रहा था मैं। अब कोलॉइड में ऐसा नहीं होता है, पार्टिकल्स नीचे नहीं जाती है, मीन्स दे डोंट सेटल एट द बॉटम, एंड दिस इज वाई कोलॉइडल सॉल्यूशंस को और कोलॉइड्स को स्टेबल भी कहा जा सकता है। सो देयर फिफ्थ प्रॉपर्टी इज दे आर स्टेबल। नाउ सस्पेंशन के बारे में हमने पढ़ा था कि वो फिल्टरेशन के प्रोसेस से सेपरेशन हो सकता है उनमें, यानी कि वाटर अलग कर सकते हैं और ये पानी अलग कर, सॉरी वाटर को ही पानी बोलते हैं, पानी और इंक अलग कर सकते हैं। पर इधर कोलॉइडल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। अगर आप फिल्टरेशन, अब देखो लॉजिकली सब चीज़ विजुअलाइज करो। अब पानी में इंक मिलाया है, राइट, अब उसको फिल्टरेशन पेपर से गुजारोगे तो इंक और पानी का जो सॉल्यूशन है वो तो फिर से वही निकलेगा। फिल्टर पेपर में तो सॉलिड चीज़ होती है ना, राइट, सब विजुअलाइज करके देखो, वो नहीं होता है। राइट, और इसी के लिए आपके एनसीईआरटी में आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, एक्टिविटी 2.5 है वो, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये इसलिए होती है इस कोलॉइडल सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए, यानी कि हम इंक सेपरेट कर सकते हैं और वाटर सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सिर्फ लैब्स में होती है, ठीक है। सो हियर we complete with colloidal solution. Now one more paragraph which is the extra knowledge is about colloidal solutions are
that the components of colloidal solutions are the dispersed phase and the dispersed medium, right? अब components colloidal solutions के मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ ऊपर colloidal जैसे कंप्यूटर के एक कंप्यूटर बोलो तो हमारे मन में क्या क्या आता है, उसके कंपोनेंट्स आते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वैसे ही कोलोइडल सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है डिस्पर्स्ड फेस और दूसरा है डिस्पर्स्ड मीडियम। सो डिस्पर्स्ड डीडी, बस इधर क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है और इधर है मीडियम। ये खराब हो गई है, सॉरी, ठीक है। हाँ, now the solute like component or the dispersed particles of a colloid solutions are called dispersed phase, right? अब देखो solute particles मैंने पहले समझाया आपको, राइट? अब कोलोइडल सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स इंक है या मिल्क है, राइट? सो इंक जो है वो जो the ink particles or the ink like components or dispersed particles in a colloid, यानी कि जो डिस्पर्जन का बिहेवियर रखती है, यानी कि जो इंक है, इंक बेसिकली मैं इन अ नटशेल बोलता हूँ आपको, इंक ले लो आप, इंक को डिस्पर्स्ड फेस बोलेंगे और वाटर को डिस्पर्स्ड मीडियम बोलेंगे, राइट? नाउ these colloids, right, sorry, now are classified according to their states, liquid, solid or gaseous, of the dispersing medium and the dispersing phase, dispersed phase and dispersed medium. The few common examples were given and you can see that they are very common to our everyday life, means we use a lot of colloidal solutions in our everyday life, right? Now we will learn about the how we can separate the components of a mixture, right? Now the most of the components are not chemically pure, right? We all know that most of the substances are not chemically pure. Different methods of separation we are used to get individual components as the mixture, we know that, right? अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पॉइंट के लिए। मिल्क, जो अभी मैंने बोला आपको वाटर, फैट, प्रोटीन्स होता है, सो बेसिकली ये साइंटिस्ट के लिए एक मिक्सचर है, इट्स नॉट प्योर सब्सटेंस, राइट? अब प्योर सब्सटेंस में शुगर आते हैं, सॉल्ट आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ separation makes it possible to study the individual components mixture. अब सेपरेशन जो है प्रोसेस, ये हमें अलग अलग कंपोनेंट्स, यानी कि अब नमक है जैसे, वो एक प्योर है, अब इसका NaCl, ये केमिस्ट्री में आ गया, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम वैसे, सो NaCl को अलग अलग हो सकते हैं वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नाउ वो भी आगे आप पढ़ोगे, राइट? नाउ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का जानकारी पाने के लिए सेपरेशन जरूरी है, राइट? नाउ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी separated into their respective constituents with the simple physical methods. अब heterogeneous mixture, अब क्या बोल सकते हो, नींबू, lemon, take a full sphere lemon in a water. अब आप इस heterogeneous mixture को हाथ से भी निकाल सकते हो with the help of hand picking, right? With the help of sieving, with the help of filtration, आप सस्पेंशन के सारे प्रोडक्ट्स यानी कि एलम ऑफ वाटर को निकाल सकते हो। नाउ दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ, ये सारी चीज़ें हम हमारे डे टू डे लाइफ यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, राइट? समटाइम्स वी नीड अ स्पेशल टेक्निक्स। नाउ टू नीड दिस स्पेशल टेक्निक्स we should learn about these special techniques, right? Now
I will continue this lecture in just 5 minutes. Uh, let's continue. So, drink a sip of water or anything. Let's again restart it.